Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos. In this video we will see questions related to clock, and this is with reference to CSAT UPSC prelims examination. So the content will be according to that only, and we will be discussing formulae and examples. As everybody knows clock, the figure is here. You can see that it has been divided into 12 parts and each part has been divided into 5 parts, so total 5 into 12, 60 parts are there. So we call it a dial or face of the clock. It is a circle whose circumference is divided into 60 equal parts, and we name it or call it minute spaces. And hour hand and minute hand is what? These are two things. The clock has two hands. The smaller hand is called the hour hand, or we call it short hand, and larger hand is called long hand or minute hand. And in 60 minutes, minute hand gains 55 minutes over the hour hand. In 60 minutes, hour hand will move 5 minute spaces, while the minute hand will move 60 minute spaces. In effect, the space gain of minute hand with respect to hour hand will be 60 minus 5, that is 55 minutes. They meet every 65 minutes, not 60 minutes. And the hour and minute hand coincide only once, between 11 and 1 o'clock, that is at 12 o'clock. So from both the above statements we can say that both hands, the two hands minute and hour hand, they coincide or meet exactly 11 times in a time period of 12 hours or a span of 12 hours. In other words, they meet after every 1 hour and 5.454545 minutes. Means we want to write if it is precisely, because decimal, it's a recurring decimal, so it won't end. But if we want to write in the hours, they overlap or meet after 1 plus 1 upon 11. Now 1 upon 11 is what? It's in hours. So if we want to convert it into minutes, it becomes 60 upon 11, and 60 upon 11 gives 5.4545, that recurring decimal. So second time they will meet 2 plus 2 upon 11, so 2 hours and 2 upon 11 hours. So 2 upon 11 hours will be 2 into 60 upon 11, that is 120 upon 11, and that again 2 hours, and we will have this much. Means we can convert 2 plus 2 into 60 upon 11, whatever value will come. So they will meet. The last one will be 11 upon 11, that gives 1. So 11 plus 1 is 12 o'clock. So that is why we are getting this expression that they are meeting exactly 11 times in a period of 12 hours. The hands now meeting the opposite direction when it 180 degree. Meeting means there is angle 0 degree, they are meeting, and 180 degree means they are opposite, they are in opposite direction. So the hands of a clock point in opposite directions in the same straight line 11 times. Here also 11 times in every 12 hours. Besides, because we have between 5 and 7, they point in opposite directions at 6 o'clock only. So instead of 12, they are opposite 11 times in 12 hours. So in a day, the hands point in the opposite directions 22 times, and they meet also 22 times. एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और 60 मिनट में ये पूरा राउंड कवर हो जाता है. मीन्स मिनट्स आर 60. ये आवर हैंड है और ये मिनट, बड़ी वाली मिनट हैंड है, और एक घंटे में ये 2 बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, जबकि ये 90 डिग्री पे 3 बजे एंड 9 बजे. सो 90 डिग्री पे 2 बार परपेंडिकुलर. मिनट हैंड जो है, जो बड़ा वाला हैंड है, वो 60 मिनट्स कवर करता है. मीन्स एक घंटे में पूरा ये सर्कल कवर कर लेता है, और ये सर्कल जो है 360 डिग्री है. और 60 मिनट्स में क्या, तो एक मिनट में कितना किया? 360 अपॉन 60 मीन 6 डिग्री. सो एक मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री घूम जाता है. तो ये जो हुआ, ये इतनी दूरी, ये 6 डिग्री है, और 6 इंटू 5 ये पूरा 30 डिग्री हो गया, एंड 30 इंटू 12 360 हो गया. ये 12 है ऐसे, 30 इंटू 12. और आवर जो हैंड है वो 12 आवर्स में
कवर करता है। 12 आवर्स में ये पूरा राउंड लगाता है ये स्मॉल जो है। तो एक आवर में कितना लगा रहा है 360/12 30 डिग्री। तो ये वाली निडल यहीं तक आती है 1 घंटे में। तो डिग्री कितनी इसने कवर की 360/12 इंटू 60। एक आवर में तो 30 डिग्री है और 1 मिनट में इन 1 मिनट आवर हैंड कितना करता है 30 एंड उसे फिर 60 से डिवाइड कर दिया तो हाफ डिग्री करता है इन 1 मिनट। तो दोनों में डिफरेंस देखें आवर हैंड में और मिनट हैंड में। तो मिनट हैंड ने किया 6 डिग्री और आवर हैंड ने किया हाफ डिग्री, तो डिफरेंस है 5.5 डिग्री ओवर द आवर हैंड। तो मिनट हैंड गेन कर जाता है 5.5 डिग्री ओवर द आवर हैंड 50 मिनट स्पेसेस अपार्ट। तो 3 बजे और 9 बजे ये 90 डिग्री पर होता है। 3 बजे की ये फिगर बनी है, ये 90 डिग्री है, ये 9 o'clock पे भी। 3 बजे ये 12 है, 12 का सिंबल है। देन 1 2 3 9 पे ये 9 10 11 12 इस तरह से होगा। 9 इज हेयर। तो ये स्पेसेस जो हैं 15 मिनट स्पेसेस हैं। और जब ये स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री जो कि 6 o'clock होता है 30 मिनट्स स्पेसेस अपार्ट होगा। और ये स्ट्रेट लाइन भी एक ही बार होता है जब 6 o'clock होता है। 90 डिग्री 2 बार होता है, स्ट्रेट अपोजिट टू ईच अदर एक बार होता है, तब 180 डिग्री का एंगल होता है। और 1 घंटे में दोनों कोइंसाइड एक ही बार करती हैं जब 12 o'clock होता है। 1 घंटे में दैट इज 60 मिनट्स में जो मिनट हैंड है वो पूरा सर्कल कवर कर लेती है। मान लीजिए 12 o'clock से चली तो फिर 12 o'clock पर आ जाती है, लेकिन जो आवर हैंड है वो सिर्फ 12 से 1 तक ही गई, तो 55 मिनट स्पेसेस को गेन कर लेती है मिनट हैंड ओवर आवर हैंड। मिनट हैंड जो है 12 टाइम्स फास्टर चलती है देन आवर हैंड। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि n एंड n+1 o'clock के बीच के लिए हैं। 2 hands of the clock will be together between n and n+1 o'clock at 60 n/11 minute past n o'clock। तो जनरली ये फॉर्मूले n एंड n+1 वाले ही अभी हम देखेंगे, तो ये आप याद करें। क्वेश्चंस हम इस पर देखेंगे बट फॉर्मूले याद कर लें। 2 hands of the clock will be at right angles between n and n+1 o'clock at this many minutes past n o'clock। So ये second formula है। थर्ड है 2 hands of the clock will be in the same straight line but not together between n and n+1 o'clock at this many minutes past n when n is greater than 6। and इसके लिए दूसरा फॉर्मूला है this many minutes past n when n is less than 6। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है एंगल्स बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। अभी तक हमने n एंड n+1 o'clock के बीच वाले फॉर्मूले पढ़े। अब एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। सो व्हेन द मिनट हैंड इज बिहाइंड द आवर हैंड the angle between the two hands at n minute past will be this t o'clock 30 t minus n/5 plus n/2 डिग्री। और जब मिनट हैंड आगे है आवर हैंड से तब जो एंगल होता है दोनों के बीच में n मिनट्स पास्ट t o'clock। और t o'clock क्या है दिस मच 30 n/5 माइनस t। यहाँ ये रिवर्स हो गए, यहाँ t माइनस n/5 था, यहाँ n/5 माइनस t एंड ये माइनस n/2 डिग्री। अब क्वेश्चंस देखते हैं फॉर्मूला पे बेस्ड एंड एक फॉल्टी क्लॉक और डिस्कस करेंगे। 2 hands of the clock will be together between n and n+1 o'clock at 60 n/11 minute past n o'clock। इस फॉर्मूला पर बेस्ड है ये। At what time between clock 3 o'clock and 4 o'clock this is the time has been given will the hand of the clock be together। so ये ABC है। अब 2 hands कब coincide करेंगे will be together। together means coincide कर रहे हैं 60 n/11 minute past 10। तो 60 n is 3 o'clock upon 11 minute past 3। so this comes 180/11। so these many minutes 3 बजे के बाद इतने मिनट पर दोनों टुगेदर होंगे, तो डी इज द आंसर। फॉर्मूला 2
Two hands of the clock will be right angles between n and n plus 1 o'clock at 5n plus minus 15 12 upon 11 minute past o'clock. इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, at what time between 5 o'clock and 6 o'clock will the hands of the clock be at right angle. तो ये चार ऑप्शंस दिए हैं. तो जैसे कि हमें पता है राइट एंगल पर जब होती है तो 15 मिनट स्पेसेस का डिफरेंस होता है. उसका एग्जांपल हमने देखा 3 o'clock या 9 o'clock, और भी होंगे इन बिटवीन, क्योंकि एक घंटे में दो बार परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और एक घंटे में एक बार 180 डिग्री होते हैं. 180 का एग्जांपल हमने देखा 6 o'clock. एट 5 o'clock मिनट हैंड जो है 12 पे होगी और क्लॉक जो हैंड शॉर्ट हैंड है वो होगी 5 पे. तो ये डिफरेंस कितना है 25 स्पेसेस. लेकिन हमें कितना चाहिए 15 मिनट स्पेसेस. ये 25 मिनट स्पेसेस हो गया, तभी वो 90 डिग्री पे होंगी. तो दो केस अराइज होते हैं, एक तो मिनट हैंड बिहाइंड द आवर हैंड है और दूसरा मिनट हैंड अहेड द आवर हैंड है. तो जब बिहाइंड वाली केस है तो बिहाइंड से उसे आगे आना पड़ेगा 10 स्पेस और 25 माइनस 15 10 मिनट स्पेसेस आगे आएगी, तब उन दोनों में डिफरेंस 15 मिनट स्पेसेस का रहेगा. तो ये कॉन्सेप्ट की 60 मिनट्स में एक घंटे में 55 मिनट स्पेसेस गेन कर लेती है मिनट हैंड. तो 10 मिनट स्पेसेस गेन करने में कितना समय लगेगा 60 अपॉन 55 इंटू 10 120/11. ये आया 10 अपॉन 11 मिनट पास्ट 5. अब दूसरा केस देखते हैं, जबकि मिनट हैंड 15 मिनट्स अहेड है आवर हैंड के. उस समय कितना होगा 25 तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ है और इसे आगे जाना है, तो ये 15 मिनट स्पेसेस और आना चाहिए. तो ये 40 मिनट स्पेसेस हो गया. फिर वही कॉन्सेप्ट की 60 मिनट्स में 55 मिनट स्पेसेस गेन करता है. तो 40 मिनट स्पेसेस कितने में गेन करेगा, दैट विल बी 60 अपॉन 55 इंटू 40. तो दिस कम्स इतने मिनट्स, दिस विल बी एट पास्ट 5. तो इस एंगल पर इतने मिनट्स पास्ट पर ये 90 डिग्री पर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 50 मिनट पास्ट 8. तो इसमें भी हमने देखा कि एट 8:50 द आवर हैंड इज बिहाइंड द मिनट हैंड. 8:50 पे क्या होगा, ये 8 o'clock की घड़ी और 50 हो रहा है, तो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है. तो 8:50 पे मिनट हैंड आगे है, आवर हैंड बिहाइंड है. तो फॉर्मूला उसी हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड में जब आवर हैंड बिहाइंड है या यूं कहें कि मिनट हैंड अहेड है तो ये फॉर्मूला लगेगा. अब इसमें t 8 हो गया, n 50 है, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो दिस विल बी 35 डिग्री. बी इज द आंसर. टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक विल बी in the same straight line but not together between n and n plus 1 o'clock at this minute past 10 when n is greater than 6 and this minute past n when n is less than 6. So इस फॉर्मूले पे बेस्ड एग्जांपल, at what time between 2 o'clock and 3 o'clock will the hand of a clock point in opposite directions. तो यहाँ n 2 है 2 o'clock, n plus 1 3 o'clock है, n 6 से कम है, तो जो फॉर्मूला है 6 से कम वाला लगेगा दिस वन. सो दैट इज 5n plus 30 into 12 upon 11 minutes past n. n is less than 6. n की वैल्यू 2 रखी एंड एक ही अननोन था, तो दिस इज मिनट पास्ट 2, ये मिनट्स आ गए. सो आंसर इज एक मान लीजिए एग्जाम्पल इसी में एक्सटेंड कर लिया गया कि इफ n इज 9 तब n जो है 6 से ग्रेटर देन हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा 5n minus 30 12 upon 11. तो ये आंसर आएगा उस केस में. एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, ये दोनों फॉर्मूले ऑलरेडी हम देख चुके हैं. जबकि मिनट हैंड बिहाइंड है आवर हैंड के या मिनट हैंड अहेड है आवर हैंड के, तब बिटवीन द टू हैंड्स एन मिनट पास टी ओ क्लॉक. टी हमें डिसाइड करना है, एन हमें डिसाइड करना है.
Find the angle between the hour hand and the minute hand of a clock when the time is 4:10. तो t तो 4 हो गया, n 10 हो गया. फॉर्मूला हमें लगाना है, ये 4 o'clock अगर हो रहा है तो 4 में हमारे पास 4 o'clock यहाँ हुआ और 10 में ये, तो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है. मिनट हैंड बिहाइंड है, मिनट हैंड बिहाइंड है, तो ये फॉर्मूला लगेगा. t 4 o'clock है, t o'clock 4 o'clock, n means n minute past, so 10 है, so we put the value and get the answer. Find the angle between the hour hand and the minute hand of a clock when the time is 35. अब इस क्वेश्चन को दो तरह से करके देखते हैं. तो हमने जो भी फॉर्मूला देखा कि जब हमारा मिनट हैंड जो बिहाइंड है या अहेड है, तो उस केस में, इस केस में अगर हम क्लॉक देखें तो क्लॉक में हो रहा है 5:35. क्लॉक में 5:35 means 5 is here and 35 is here, means minute hand is ahead than the hour hand. उस केस में जो फॉर्मूला हमने एंगल बिटवीन हैंड्स पढ़ा है, तो t o'clock means 30, यहाँ पर n है 35, so n 35 upon 5, n upon 5 माइनस t जो है 5 होगा माइनस n by 2, n है 35, n 35 by 2, n 35 and by 2, ये होना चाहिए. तो एक तो ये तरीका हम लगा सकते. दूसरा ये जो किया हुआ है यहाँ, तो इसे अगर हम देखें तो ये 7 हो गया, 7 minus 5 is 2, 60 minus 35 by 2 means 17.5, and 17.5 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 42.5 आ रहा है. तो आंसर सेम है, करेक्ट है. अब इधर देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 घंटे में जो आवर हैंड है वो 360 डिग्री चल जाती है. जो एंगल है आवर हैंड का 5:35 तक कितना हो जाएगा एंगल, वो होगा 5:35 को 60 से डिवाइड किया. पहले तो ये आवर को चेंज किया इसमें, तो ये आवर हो गए, मिनट्स को आवर में चेंज कर लिया, 35 मिनट्स को आवर में, तो कुल मिला के 5:35 में जो आवर है 67/12 आवर. अब इसे हमने एंगल में देखना है, तो एंगल 12 घंटे में चलता है 360, तो 1 घंटे में 360/12, तो 67/12 घंटे में गुणा कर देंगे. सो दीज मैनी एंगल, सो 137 हाफ डिग्री एंगल जो है 5:35 तक हो जाएगा. अब मिनट वाली जो हैंड है वो 1 घंटे में 60 मिनट में 360 डिग्री वो भी चलती है, वो 12 घंटे में चला था, ये चला 1 घंटे में. देन जो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड होगा 35 मिनट में, वो होगा 360/60, 60 मिनट में 360, 1 मिनट में 360/60 गुणा 35 मिनट, तो ये आएगा, तो ये आ गया 210. अब दोनों का डिफरेंस देख लें, उतना ही एंगल होगा, तो 210 माइनस दिस कम्स दिस मच. तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं. अब अगर क्लॉक फॉल्टी है, सही नहीं चल रही है, तब क्या सिचुएशन होगी, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप देख लेते हैं. अगर क्लॉक आगे का समय दिखा रही है, मान लो 5 बजे 5:10 दिखा रही है, तो तेज चल रही है. और अगर जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 5:30 हो गया है टाइम, लेकिन 5:20 दिखा रही है, तो स्लो चल रही है. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक overtakes the hour hand at intervals of m minute of correct time. The clock gains or loses in a day by this much minute. तो मिनट हैंड ऑफ क्लॉक जो है overtakes the hour hand at intervals of m minute of correct time. तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे. तो अभी एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, तब क्लियर हो जाएगा. If the minute hand of clock overtakes the hour hand at intervals of 65 minutes, the time gained or lost by clock is given by 720/11 minus m. अब 65 हो गया मिनट जो कि दिया गया है, into 60 into 24/m, that is 65. तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, so this comes this much. अब ये इंक्रीज होगा, this was increase होगा तब पॉजिटिव साइन है, और डिक्रीज होगा तो नेगेटिव साइन है. तो यहाँ पॉजिटिव साइन है, सो दिस विल बी इंक्रीज. टाइम गेन्ड होगा, लॉस्ट है जब माइनस साइन है. द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ओवरटेक्स द आवर हैंड एट द इंटरवल ऑफ 70 मिनट ऑफ द करेक्ट टाइम. हाउ मच इन ए डे डज द क्लॉक गेन और लॉस. तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाया, 70 मिनट्स है यहाँ,
तो यहाँ जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो लॉस हो रहा है, दीज मैनी मिनट्स का लॉस है, नेगेटिव साइन है। थैंक यू।